ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਮਨ ਤੇ ਮਹਾਬਲੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਵਾਮਨ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਅਸੁਰ ਰਾਜਾ ਮਹਾਬਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਛਲ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗੇ ਬੁਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਡ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਰਥਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਅਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਓਨਮ ਤਿਉਹਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਝਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਰਾਜਾ ਮਹਾਬਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸਨ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਾਨੀ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੱਗਾਂ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 100ਵਾਂ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਧਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਮਨ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਦਿਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਵਾਮਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੌਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬਲੀ ਦੇ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 3 ਕਦਮ ਧਰਤੀ ਮੰਗੀ। ਪਰ ਬਲੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰਿਆ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਬਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਾਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮੰਡਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਮਨ ਨੇ ਕੁਸ਼ਾ ਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਰ ਬਲੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਤ ਮਤਲਬ ਸੱਤਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਹਾਣੀ 'ਚ? ਇਹ ਬਲੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨੇਕੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਲੀ ਮੰਨਿਆ, ਵਾਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤ੍ਰਿਵਿਕਰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਲੌਕਿਕ ਰੂਪ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕ ਮਾਪ ਲਏ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਵਰਗੀ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਕਦਮ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਕਦਮ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਸੀ। ਇਹੀ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਮਤਲਬ 3 ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 3 ਕਦਮ ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਲਾਲਚ ਤੇ, ਦੂਜਾ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਿਆਗ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਗਣਾ, ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਮੋਕਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਲੀ ਨਾਲ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਕੇ? ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਖੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਸੁਤਲ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਦਰ ਬਣਨਗੇ। ਵਾਹ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਓਨਮ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਓਨਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਬਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਵੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹਨ? ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰੀਅਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰਾਵਿਡ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਬਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਜਾਂ ਰੰਗਭੇਦ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵਾਮਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਕਦੇ ਸਾਂਵਲਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ, ਕਦੇ ਬੌਣਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੰਗ ਜਾਂ ਕਦ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਛਾ ਐਨੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਧਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੀ ਦਾ ਵਚਨ, ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਧਰਮ ਮਤਲਬ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
आज हम हिंदू पुराणों की एक बहुत ही दिलचस्प और काफी गहरी कहानी पर बात कर रहे हैं, भगवान विष्णु के वामन अवतार की। जी, और उनके साथ हैं एक नेक असुर बादशाह महाबली। हाँ, और जो हमारे पास जराए हैं ना, वो एक ऐसी कहानी बताते हैं जो मतलब पहली नजर में तजादात से भरी लगती है। बिल्कुल, आमतौर पर लोग समझते हैं कि ये बस अच्छाई की बुराई पर फतह है, लेकिन असल बात वो कहीं ज्यादा पेचीदा है। अच्छा, कैसे? देखिए, एक बादशाह जो इंतहाई नेक है, सखी है, खुदा का भक्त है, और उसे झुकाया जाता है एक इलाही फरेब के जरिए। ओह, तो आज हमारा मकसद है कि इसी क्या कहते हैं, देवी लीला या खेल को समझें, किरदारों को देखें और इसके जो सकाफती असरात हैं, समाजी असरात हैं, उन पर बात करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। महाबली का किरदार ही शुरू से बड़ा दिलचस्प है। जी हाँ। वो प्रहलाद के पोते थे। अब प्रहलाद खुद विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। बिल्कुल। और महाबली का जो दौरे हुकूमत था, उसे तो एक सुनहरी दौर कहा जाता है। अमन, खुशहाली, इंसाफ। जी, कहते हैं कोई गरीब नहीं था, कोई बीमार नहीं था, सब बराबर। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर वो इतने नेक थे, तो उनकी ताकत और सखावत वो तकब्बुर में कैसे बदल गई, इतना कि उन्होंने जन्नत पर ही कब्जा कर लिया? हाँ, ये एक अहम नुक्ता है, और ये भी याद रखना जरूरी है कि असुर का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता था। तारीख में कई असुर ताकतवर भी थे और नेक भी। सही, तो यहीं से फिर वामन अवतार की जरूरत पेश आती है। बिल्कुल, जब महाबली ने देवताओं को जन्नत से निकाल दिया, तो देवताओं की माँ अदिति, वो विष्णु भगवान से मदद मांगती हैं। अच्छा, तो विष्णु उनके बेटे के तौर पर जन्म लेते हैं, वामन, एक छोटे कद के बौने ब्राह्मण के रूप में। और उनका ब्राह्मण होना ये अहम था? बहुत अहम, क्योंकि इसी वजह से उन्हें महाबली के यज्ञ में जाकर भिक्षा यानी खैरात मांगने का हक मिलता है। ओह, अच्छा। और देवता उन्हें कुछ अलामती तोहफे भी देते हैं, जैसे छतरी जो आसमानी हुक्मरानी की अलामत है, डंडा यानी इंसाफ का निशान, और कमंडलू पानी का बर्तन जो तख्लीक की अलामत समझा जाता है। ठीक है, तो कहानी का जो सबसे अहम मोड़ है वो महाबली के अश्वमेध यज्ञ के वक्त आता है। जी, वजीम वैदिक रस्म जो कायनात पर बादशाहत कायम करने के लिए होती थी। वामन वहां पहुंचते हैं और क्या मांगते हैं? सिर्फ 3 कदम जमीन। हाँ, बस इतना सा। महाबली जो अपनी सखावत के लिए मशहूर थे, वो तो शायद हंस पड़े होंगे। उन्हें लगा होगा कि ये क्या मांग लिया। उन्होंने कहा भी कि कुछ बड़ा मांगो। बिल्कुल, और इसी मौके पर वामन कनात पर यानी थोड़े पर राजी रहने पर एक फिलॉसफियाना बात भी करते हैं। लेकिन महाबली के जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो अपनी दिव्य दृष्टि से यानी रूहानी नजर से पहचान लेते हैं कि ये कोई आम ब्राह्मण नहीं, ये तो खुद विष्णु हैं। अरे, वो फौरन महाबली को खबरदार करते हैं कि खबरदार, ये वादा मत करना। लेकिन महाबली नहीं मानते। और जब वो वादा करने के लिए पानी डालने लगते हैं, तो शुक्राचार्य उस पानी को रोकने के लिए खुद एक कीड़े की शक्ल में उस कमंडलू पानी के बर्तन के सुराख में घुस जाते हैं। ओह, ये तो वामन एक कुछ घास का तनका लेते हैं और उस सुराख में डालकर शुक्राचार्य को बाहर निकालते हैं, लेकिन इस कोशिश में शुक्राचार्य की एक आंख जाया हो जाती है। उफ, तो महाबली का क्या रद्द अमल था? अपने गुरु की बात नहीं मानी उन्होंने? क्या ये भी तकब्बुर था या सच्चाई पर कायम रहना था? ये बड़ा अहम सवाल है। महाबली कहते हैं कि मैं वादा कर चुका हूँ और वादा खिलाफी से बड़ा कोई गुनाह नहीं, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए। ये एक तरह से कहानी का इखलाकी नुक्ता उरूज है। वाह। तो जैसे ही महाबली वादा करते हैं, पानी हाथ में लेकर वामन अपना असल रूप दिखाते हैं। वो विराट रूप? जी, वो देव हैकल त्रिविक्रम रूप, इतना बड़ा कि पहले कदम में उन्होंने पूरी जमीन नाप ली। पूरी जमीन? हाँ, दूसरे कदम में सारा आसमान, जन्नत, सब कुछ। तो तीसरे कदम के लिए तो जगह ही नहीं बची। बिल्कुल। वामन पूछते हैं, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो महाबली कमाले आजिजी से अपना सर आगे कर देते हैं कि यहाँ रख दीजिए। अपने सर पर? जी। इन 3 कदमों का कोई अलामती मतलब भी तो होगा, ये सिर्फ जमीन आसमान नापना तो नहीं हो सकता? यकीनन इसकी गहरी मानवियत है। कुछ लोग कहते हैं कि पहला कदम जो जमीन पर था, वो इंसान की जिस्मानी ख्वाहिशात, लालच, उन चीजों पर काबू पाने की अलामत है। अच्छा। दूसरा कदम जो आसमान की तरफ था, वो गुस्सा, खौफ, जो जज्बाती कैफियत हैं, उन पर फतह की अलामत है। और तीसरा कदम जो सर पर रखा, वो तकब्बुर यानी गुरूर का मुकम्मल खात्मा और अपने आप को पूरी तरह खुदा के सुपुर्द कर देना, रूहानी सुपुर्दगी। तो फिर महाबली का क्या हुआ? उन्हें सजा मिली या ये उनके लिए अच्छा हुआ? यही तो कहानी और दिलचस्प हो जाती है। उन्हें सजा नहीं मिलती, बल्कि उन्हें सतोला भेज दिया जाता है। सतोला? वो क्या है? सतोला एक ऐसा आलम है जिसे जन्नत से भी ज्यादा शानदार कहा गया है, और विष्णु खुद वादा करते हैं कि वो महाबली के दरबान बन के रहेंगे। विष्णु भगवान खुद दरबान बनेंगे? जी, और उन्हें ये एजाज भी दिया जाता है कि वो अगले मनोवंतर में यानी अगले कायनाती दौर में इंदर का ओहदा संभालेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा एजाज हुआ। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि जो शुक्राचार्य ने गुस्से में शराब दिया था ना महाबली को कि तुम अपनी शान और शौकत खो दोगे, हाँ, वो शराब भी गैर इरादी तौर पर खुदा के मंसूबे को पूरा करने का जरिया बन गया, क्योंकि जब दौलत और ताकत गई, तभी महाबली गुरूर से आजाद हुए और उन्हें विष्णु की ये मेहरबानी मिली। अच्छा,
ये तो बड़ा गहरा नुक्ता है, और मैंने सुना है इस कहानी का ताल्लुक रक्षाबंधन से भी जुड़ा जाता है। जी, एक जिम्मी कहानी है कि बाद में देवी लक्ष्मी सतला जाती हैं, महाबली को राखी बांधती हैं, उन्हें अपना भाई बनाती हैं और बदले में विष्णु भगवान को उनकी दरबानी से आजाद करवा के वापस ले आती हैं। वाह, और ये कहानी सिर्फ किताबों में नहीं, ये तो आज भी जिंदा है, खास तौर पर केरला में ओणम त्योहार की शक्ल में। जी हाँ, ओणम वो 10 दिन का त्योहार जो केरला में मनाया जाता है। ये असल में महाबली, जिन्हें वहाँ प्यार से मावेली कहते हैं, उनकी अपनी रियाया से मिलने के लिए सतला से सालाना वापसी का जश्न है। अच्छा, तो वो हर साल वापस आते हैं? जी, ऐसी लोक मान्यता है। और ये त्योहार इसी सुनहरी दौर की याद में मनाया जाता है जब महाबली के राज में हर तरफ खुशहाली थी, बराबरी थी। वो फूलों की रंगोलियां बनाते हैं, पूकलम कहते हैं उसे, और बड़ी शानदार दावतें होती हैं, ओना सद्या। ये तो बहुत खूबसूरत रिवायत है, लेकिन आजकल इस कहानी की कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ तशरीहात भी सुनने में आती हैं, खासतौर पर सामाजी इंसाफ के हवाले से। बिल्कुल, 19वीं सदी में एक बड़े समाजी मसले गुजरे हैं, ज्योतिबा फुले। उन जैसे कुछ मुफक्किरीन ने इस कहानी को एक अलग जाविये से देखा। वो क्या जाविया था? उन्होंने इसे हिंदुस्तान की मकामी जो द्रविड़ी और दलित आबादियां थी, उन पर आर्य ब्राह्मणी ताकतों के कब्जे और उनकी तारीखी महकूमी के इस्तारे के तौर पर देखा। ओह, मतलब ये कि इस नजरिए में महाबली एक बहादुर मकामी बादशाह हैं जो मुसावात पर यकीन रखते थे, और वामन का जो फरेब है वो जात-पात के निजाम को जबरदस्ती मुसल्लत करने की एक चाल थी। तो महाबली एक तरह से सकाफती जबर के खिलाफ मुजाहमत की अलामत बन जाते हैं। ये तो बिल्कुल ही अलग पहलू है, और ये भी दिलचस्प है कि आजकल विष्णु के दूसरे अवतारों को भी इसी समाजी इंसाफ के नजरिए से देखा जा रहा है। जी हाँ, जैसे वामन तो चलो बोने ब्राह्मण थे, कृष्ण एक चरवाहे थे, यहाँ तक कि मोहिनी जो विष्णु का औरत का रूप था। बिल्कुल। क्या ये कहा जा सकता है कि ये अवतार खुद जो माशरती ढांचे थे, जैसे जात-पात या रंग परस्ती, हाँ, वो कायनाती तारीकी वाला तस्वर जो गोरेपन की बर्तरी को चैलेंज करता है, जी, या सनफी अदम मसावत, तो क्या ये अवतार इन निजामों को चैलेंज करते नजर आते हैं? हाँ, ऐसी तशरीहात बिल्कुल मौजूद हैं जो इन अवतारों में ये सलाहियत देखती हैं। तो वाकई ये कहानी बहुत कसीर जहती है। इसमें जाती नेकी बमुकाबला कायनाती निजाम का सवाल है, दुनियावी ताकत बमुकाबला रूहानी आजिजी का टकराव है, और सबसे बढ़कर सच्चाई पर कायम रहने की अहमियत। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जी, देखें, पुराणों में महाबली का सतला जाना वो उनकी इनफरादी रूहानी निजात समझा जाता है, विष्णु का फजल है ना। जी, लेकिन जो ओणम का त्योहार है वो उनकी वापसी को मनाता है, एक इज्तिमाई खुशी के तौर पर, एक मिसाली मुआशरे की याद के तौर पर। हाँ, ये फर्क तो है। तो ये जो फर्क है, एक तरफ इनफरादी नजात पर जोर देने वाली मजहबी रिवायत, और दूसरी तरफ एक मुनसिफाना समाज की इज्तिमाई याद पर मरकूज लोक रिवायत, ये अकदार और तरजीहात के बारे में क्या जाहिर करता है? सोचने की बात है। वामन अवतार, राजा महाबली की अद्भुत कथा। जय श्री हरि। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान किसी ऐसे धर्मात्मा राजा के साथ लीला करने के लिए अवतार लेंगे जिसका राज्य स्वर्ग से भी सुंदर था? एक ऐसा राजा जिसकी दानवीरता की कोई सीमा नहीं थी। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के सबसे रहस्यमय और बौने ब्राह्मण अवतार वामन की अद्भुत कथा। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया और बदले में स्वयं भगवान को ही प्राप्त कर लिया। महाबली का स्वर्णिम राज्य। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब धरती पर एक असुर राजा का राज था, लेकिन ये कोई साधारण असुर नहीं था। ये थे भक्त प्रहलाद के पोते महाबली। इनके राज में प्रजा इतनी सुखी और समृद्ध थी कि देवता भी ईर्ष्या करने लगे। ना कोई अपराध, ना कोई बीमारी, ना कोई झूठ, हर तरफ समानता और खुशहाली का साम्राज्य था। महाबली अपने पराक्रम और तप से तीनों लोगों के स्वामी बन बैठे थे। अब देवताओं का सिंहासन भी ढूंढने लगा। घबराकर देव माता अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब विष्णु ने उनकी कोख से एक बौने ब्राह्मण बालक वामन के रूप में जन्म लिया। नर्मदा तट पर महायज्ञ। एक दिन राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की थी कि यज्ञ के दौरान कोई भी उनसे कुछ भी मांगेगा, उसे खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। यज्ञशाला में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और सबने देखा कि हाथ में छाता और कमंडल लिए एक तेजस्वी बौना ब्राह्मण चला रहा है। उनका छोटा सा रूप और दिव्य आभा देखकर राजा बलि ने उनका सत्कार किया और कुछ भी मांगने को कहा। 3 पग भूमि का दान। वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मुझे और कुछ नहीं, बस अपने पैरों से 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंस पड़े। केवल 3 पग भूमि? हे विप्रवर, आप तो मुझसे संपूर्ण द्वीप या स्वर्ण निधियां मांग सकते थे। आपकी ये मांग तो अत्यंत तुच्छ है। लेकिन वामन के पीछे खड़े गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए। उन्होंने बलि को चेताया, राजन, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु है। अपना वचन वापस ले लो वरना सर्वनाश हो जाएगा। पर बलि ने कहा, गुरुदेव, अगर स्वयं भगवान विष्णु आज मुझसे मांगने आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। और जैसे ही बलि ने दान का संकल्प लिया, वामन का शरीर बढ़ने लगा। वो इतने विशाल हो गए कि उनका शरीर ही पूरा ब्रह्मांड बन गया। उन्होंने एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा आकाश और स्वर्गलोक। अब उन्होंने बलि से पूछा, राजन, तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने बिना एक क्षण सोचे अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, इस शरीर पर मेरा ही अधिकार है, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए।
ये केवल दान नहीं बल्कि अहंकार का पूर्ण विसर्जन और आत्मा का सर्वोच्च आत्मनिवेदन था, जहां भक्त ने स्वयं को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान ने जैसे ही अपना पैर बलि के सर पर रखा, उन्हें हर बंधन से मुक्त कर दिया। कथा का सार। इस कहानी का सार यह है कि जब आप अहंकार छोड़कर अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं तो ईश्वर स्वयं आपके हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी की मदद करें तो राजा बलि की तरह बिना किसी अहंकार के करें। भगवान का वरदान। बलि के इस अभूतपूर्व समर्पण और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल के सबसे समृद्ध लोक सूतल का राजा बना दिया और स्वयं उनके द्वारपाल बनकर हमेशा उनके साथ रहने का वचन दिया। यही राजा महाबली आज भी केरल में ओणम के पर्व पर अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।